So we are discussing regarding iron deficiency anemia. So this is the third class. Iron deficiency in iron deficiency anemia. So हमने देखा था नॉर्मल आयरन कैसे मिलता है, आयरन कैसे मिलते हैं, हाउ इट इज डाइजेस्टेड, हाउ इट इज अब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी एंड हाउ द आयरन इज लॉसेस थ्रू द बॉडी. आयरन बॉडी से कैसे लॉस होता है इसके बारे में हम स्टडी किया था. सो आयरन इज मेनली अवेलेबल इन टू फॉर्म्स, एनिमल प्रोडक्ट एंड plant products. Okay, so animal product is directly enter into the duodenum and absorbed in the form of heme, that is organic iron, and plant products, these are in the stomach digested, then they form the ferric form. Ferric form is converted into ferrous form. Ferric is converted into ferrous by the ferroreductase enzymes. Okay, so इसके बारे में स्टडी किया था. Next, it is after enter into the duodenum, the duodenum import the ferrous form of iron through the divalent metal transporter enzymes. Then after absorption, the storage form of iron is bind with the apoprotein enzyme, then that are stored in the body as a ferritin. Then the functional iron is directly enter into the blood circulation, so that is a functional iron. Iron is stored in our, or iron is mainly included in our body, functional iron and storage form of iron बोला था मैंने. Okay, तो functional iron है. Next, after entering into the blood circulation, circulation में functional iron enter हो गया. For example, इधर ferrous enter हो गया. So ferrous enter होने के बाद in the blood circulation, the liver protein like transferritin. Okay, liver, there is a protein present in the liver that is called as transferritin. This transferritin is binds with the blood iron molecules. जो blood में आया है उसको iron molecule के साथ bind होता है. Okay, so this transferritin molecules are, this transferritin releases by the liver in the excessive amount. Okay, जितना iron होता है उससे 3 गुना ज़्यादा transferritin रिलीज होता है, क्योंकि the one molecule of transferritin is bind with the 2 molecules of iron. 2 molecules of iron, 2 molecules iron से bind होता है. ये एक transferritin 2 iron molecules को bind करता है. Okay, so this is called as, हमने ब्लड टेस्ट में एक टेस्ट करते हैं TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, लास्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आता है. So that's why it is a very important. Total iron binding capacity means the iron is bind with the transferritin. This is released by the liver protein or liver hepatocytes. So this is then next, after binding with the transferritin, okay, this is taken into the bone marrow. Bone marrow में लेके जाता है. So bone marrow, in bone marrow, this iron is useful for the formation of red blood cells. Okay, red blood cells formation में मदद करने में लेके जाता है. Okay, here the protein transferritin binding with the iron, that type of transferritin is called as saturated transferritin. मतलब जो transferritin आयरन के साथ बाइंड है उसको हमने सैचुरेटेड ट्रांसफेरिटिन बोलते हैं. जो आयरन के साथ बाइंड नहीं है उसको अनसैचुरेटेड ट्रांसफेरिटिन. इधर एक्सेसिव बहुत ज़्यादा ट्रांसफेरिटिन रिलीज होता है लिवर से. क्यों? क्योंकि जो भी थोड़ा आयरन के साथ बाइंड होता है बाकी ऐसा फ्री फॉर्म में रहता है, क्योंकि जो भी आयरन आया तो आयरन के साथ, फॉर एग्जांपल अभी 10 मॉलिक्यूल आयरन है, 10 मॉलिक्यूल आयरन है ब्लड में. सो ये ट्रांसफेरिटिन रिलीज होता है 30. ओके, 30 क्यों? मतलब इससे 3 गुना ज़्यादा ट्रांसफेरिटिन रिलीज होता है, क्योंकि ओके ये 10 इसके साथ बाइंड होता है, बाकी 20 क्या होता है, बाकी 20 और 10 मतलब एक ट्रांसफेरिटिन में 2 मॉलिक्यूल्स होता है, मतलब 10 में 5 यूज होता है, उसमें 5 यूज होता है, बाकी 25 फ्री फॉर्म रहता है. जो बाकी 25 फ्री होता है उसको अनसैचुरेटेड ट्रांसफेरिटिन बोलते हैं. जो आयरन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो गया उसको सैचुरेटेड ट्रांसफेरिटिन बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट, इट इज एंटर इनटू द बोन मैरो. इन द बोन मैरो दिस आयरन इज एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया. सो आयरन इज एसेंशियल फॉर
माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को भी चाहिए। ओके, ब्लड, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउसेस ऑफ द सेल। सो बोन मैरो को पावर हाउसेस सेल माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्स प्रोडक्शन के लिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट प्रोडक्शन में मदद करने के लिए ये क्या आयरन इंपॉर्टेंट है। सो आयरन इज वेरी एसेंशियल। सो आयरन, इन आयरन ड्यूरिंग द इंटेकिंग ऑफ द आयरन, हमने आयरन लॉसेस देखा था। आयरन इज लॉस इन द बॉडी थ्रू यूरिन, स्वेट्स, स्टूल एंड मेनली इन द फीमेल इट इज अ लॉट ऑफ आयरन इज लॉसेस थ्रू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आयरन लॉस होता है। दैट्स व्हाई आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉमन इन द फीमेल। फीमेल के आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉमन है। सो डेली इंटेक इज वेरी एसेंशियल। हमने आयरन खाने के टाइम ओके वो दो प्रकार का फूड आइटम्स आता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स, दीज आर कॉल्ड एज पॉजिटिव इन्फ्लुएंजर एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंजर। पॉजिटिव इन्फ्लुएंजर एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंजर मतलब पॉजिटिव मतलब जो फूड सब्सटेंसेस आयरन का एब्सॉर्प्शन बढ़ाता है। नेगेटिव इन्फ्लुएंजर मीन्स जो फूड सब्सटेंसेस आयरन को एब्सॉर्प्शन कम करता है। मतलब आयरन में बोला, आयरन इतना आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता, डाइजेस्ट हुआ तो भी एब्सॉर्प्शन नहीं होता। अगर एब्सॉर्प्शन होने के बाद भी वो ब्लड सेल फॉर्मेशन करने का मदद करने का बहुत दिक्कत है, क्योंकि हमने एनिमल प्रोडक्ट खाता भी नहीं, तो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाता था। जो द पर्सन्स हु आर इन वेजिटेरियन, ओके, इन द वेजिटेरियन द प्लांट प्रोडक्ट्स आर ओनली पुअर सोर्सेस ऑफ आयरन। प्लांट प्रोडक्ट्स में पुअर सोर्सेस आयरन होता है। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एब्सॉर्प्शन। सो दैट्स व्हाई द वेजिटेरियन पीपल्स आर हाई रिस्क फॉर गेटिंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस होता है। वो आयरन भी कैसे, अगर उसके साथ फूड मिक्सिंग नहीं हुआ तो वो एब्सॉर्प्शन नहीं होता। फॉर एग्जांपल टी है, अभी हमने टी के साथ, चाय के साथ हमने बार बार चाय पीने से क्या होता है, इधर आयरन एब्सॉर्प्शन होता भी नहीं है। ओके, आयरन दैट एब्सॉर्प्शन इज पुअर आयरन एब्सॉर्प्शन occurs when the person intaking of the lots of tea। ज़्यादा टी पीने से क्या होता है, आयरन एब्सॉर्प्शन होता भी नहीं है। ओके, व्हीट खाने से भी, चपाती जो बनाते हैं व्हीट से, तो व्हीट इज ऑल्सो पुअरली इनहिबिट द एब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन। ओके, दीज आर नेगेटिव इन्फ्लुएंजर। मतलब आयरन एब्सॉर्प्शन करने के लिए ये इनहिबिट करता है, आयरन एब्सॉर्प्शन करने नहीं देता है। ओके, टी ओ फास्फेट्स, ये सब क्या है, दीज ऑल आर व्हाट, दीज आर इनहिबिट द एब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन। आयरन एब्सॉर्प्शन में आयरन एब्सॉर्प्शन करने नहीं देता है। ओके, नेक्स्ट ऑक्सलेट्स। ऑक्सलेट्स मतलब ओके, ऑक्सलेट्स सबसे ज़्यादा किस में होता है, टोमेटो में। ओके, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सलेट्स दिस फॉर्म दी स्टोन्स, किडनी स्टोन्स। ऑक्सैलिक स्टोन्स होता है किडनी में। सो ऑक्सलेट्स इज एक्सेसिव टोमेटो खाने से भी क्या होता है, आयरन एब्सॉर्प्शन होता भी नहीं बॉडी के अंदर। सो दीज आर व्हाट नेगेटिव इन्फ्लुएंजर मीन्स दीज फूड सब्सटेंसेस पुअरली एब्जॉर्ब आयरन इन आवर बॉडी। हमारा बॉडी में आयरन को एब्जॉर्प्शन करने नहीं देता है। सो आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है। सो जब भी हम आयरन का फूड खाते हैं, आयरन फूड के साथ ये कभी खाना नहीं चाहिए। ओके, टी, व्हीट, फॉस्फेट्स, ऑक्सलेट्स, दीज आर व्हाट, दिस कॉजेस द पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन आवर बॉडी। ओके, इसलिए हॉस्पिटल में आयरन गोली हो और आयरन सिरप हो, वो पीने के पहला ये फूड सब्सटेंसेस को अवॉइड करने के लिए बोलता है डॉक्टर ने, क्योंकि ये फूड खाने से आयरन एब्सॉर्प्शन होता नहीं है। नेक्स्ट पॉजिटिव इन्फ्लुएंजर किसके साथ का है तो ज़्यादा एब्सॉर्प्शन बेटर है, ज़्यादा एब्सॉर्प्शन होता है। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर में ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ अगर आयरन सिरप ले तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से एब्सॉर्प्शन होता है। ओके, सिट्रिक एसिड, ओके, नींबू जूस सिट्रिक एसिड के साथ खाए तो भी सो सबसे अच्छा है, सिट्रिक एसिड से भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट अमाइनो एसिड, प्रोटीन सब्सटेंसेस, अमाइनो एसिड के साथ भी खाने से भी क्या होता है, आयरन एब्सॉर्प्शन अच्छे से हो सकता है। सो दिस इज व्हाट पॉजिटिव इन्फ्लुएंजर एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंजर। मतलब आयरन एब्सॉर्प्शन के टाइम आयरन हमने खाने के पहला
ये सब चीज़ों ध्यान रखना है। आयरन कभी ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसर के साथ खाना नहीं चाहिए। whenever the intaking of iron we should avoid the food items like tea, wheat, phosphates, oxalates. Okay, then the absorption of iron is increases with the glucose, citric acid, amino acids. Okay, so ये food items क्या करते हैं, iron absorption को बढ़ाता है. Okay, this is what the normal process of iron after entering into the stomach in the duodenum. So it is a stored and form ferritin, and the functional form enter into the blood circulation. Then it is a bind with the transferritin. Then transferritin, okay, export the iron substances to the bone marrow. In the bone marrow, it is a enter into the mitochondria. So in mitochondria that helps to formation of हीमोग्लोबिन. okay, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में मदद करने के लिए चालू करता है. ये कैसे करते हैं? दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म. सो आफ्टर एंटरिंग इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद क्या होता है? हियर इन माइटोकॉन्ड्रिया देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स इज देयर. माइटोकॉन्ड्रिया में दो तरीका से एंजाइम्स होता है. वन इज सुसिनाइल कोएंजाइम एंड ओके ग्लाइसिन. ओके, दीज आर द टू एंजाइम्स. ये दोनों एंजाइम्स है माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है. ओके, ये दोनों एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में बाइंड होके ओके ये बनाते हैं. ओके, अमाइलो लवलोनिक एसिड, अमाइलो लवलुलेनिक एसिड ये ले. ओके, सुसिनाइल कोएंजाइम एंड ग्लाइसिन, these two enzymes bind together, then they form the amino levulinic acid. Okay, next amino levulinic acid and amino levulinic acid, दो amino levulinic acid मिलके एक पायरोल रिंग बनाता है. पायरोल रिंग, दिस इज अ पायरोल रिंग. ठीक है, पायरोल रिंग मतलब ऐसा रिंग, एक रिंग बनाते हैं. दिस इज कॉल्ड एज पायरोल रिंग. इसको पायरोल रिंग बोलते हैं. ये कैसे हीमोग्लोबिन बनाता है? बॉडी का अंदर, बोन मैरो के अंदर, ये प्रोसेस बोल रहा हूँ मैं. ठीक है, इधर एब्सॉर्प्शन होगा. एब्सॉर्प्शन होने के बाद बोन मैरो में गया. बोन मैरो में माइटोकॉन्ड्रिया में दो तरीके का एंजाइम्स होता है, सुसिनाइल कोएंजाइम एंड ग्लाइसिन. द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू एंजाइम्स दैट फॉर्म्स द ओके अमाइनो लवलुलेनिक एसिड. द टू molecules of amino levulinic acid, then they form the pyrrole ring. Okay, then four molecules of pyrrole ring, चार pyrrole ring मिलके four molecules of pyrrole ring that forms protoporphyrin. Okay, ऐसा चार molecules pyrrole ring का चार molecules मिलके protoporphyrin ring बनते हैं. चार molecules 1 2 3 4. Okay, in the center of the protoporphyrin ring के सेंटर में okay, then the iron is accumulate. आयरन इसके अंदर सेंटर में क्या होता है? accumulate होता है. दिस इज कॉल्ड एज हीम. इसको हमने क्या बोलते हैं? हीम बोलते हैं. देन ओके, बोन मैरो में, सो बोन मैरो में सेल्स होता है. बोन मैरो में एक एमआरएनए क्या करते हैं? ग्लोबुलिन रिलीज करते हैं. एमआरएनए प्रोटीन सब्सटेंसेस ग्लोबुलिन इज अ प्रोटीन सब्सटेंसेस. ग्लोबुलिन रिलीज करते हैं. ये हीम एंड ग्लोबुलिन के साथ मिलके हीमोग्लोबिन बनाता है. हीम एंड ग्लोबुलिन के साथ मिलके क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन बनाता है. ठीक है, दिस हीमोग्लोबिन इज बाइंड विद द एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स. एरिथ्रोब्लास्ट सबसे पहला आरबीसी कैसे होता है? एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोसाइट्स, रेटिकुलोसाइट्स, देन एरिथ्रोसाइट्स. ठीक है, मिलकर आरबीसी होता है तब. सो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज पे ही क्या होता है? हीमोग्लोबिन बनाने में स्टार्ट होता है. सो फोर molecules of pyrrole ring, they form the protoporphyrin. The in the center of the protoporphyrin, the heme is accumulate, that is called as the iron is accumulate, that is called as heme. Then in the mitochondrial cells, mRNA releases the globulin protein substances. Then heme and globulin, the combination of heme and globulin, they form the hemoglobin. दोनों combination मिलके क्या करते हैं? hemoglobin बनाते हैं. Okay, this hemoglobin is enter into the erythroblast cells. Then erythroblast is converted into erythrocytes, reticulocytes. Then reticulocytes converted into erythrocytes. Then erythrocytes are the mature or young red blood cells. यंग रेड ब्लड सेल्स होता है. ओके, अगर यही आयरन डेफिशिएंसी हो गए तो ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी हो गए तो हीम का डेफिशिएंसी होता है. मतलब हीमोग्लोबिन, ओके, सिर्फ ग्लोबुलिन होता है, हीम होता भी नहीं. हीमोग्लोबिन ठीक से फॉर्मेशन ही नहीं होता. अगर हीमोग्लोबिन ठीक से फॉर्मेशन नहीं होगा तो ठीक है, बोन मैरो से रेड ब्लड सेल्स मेच्योर्ड होता भी नहीं है. कि दिस टाइप ऑफ अनेमिया इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. दिस टाइप का अनेमिया को हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं. ओके, दिस इज अ सिंपल सा एक प्रोसीजर है. सो
सिंपल सा थियरी है, ये थियरी अंडरस्टैंडिंग हो गई तो आगे हीमोलाइसिस रेड ब्लड सेल्स ब्रेकडाउन भी आता है, तो रेड ब्लड सेल्स ब्रेकडाउन में भी ये इंपॉर्टेंट है, ये याद है तो बहुत अच्छा है. ओके, 1 second I will release. Okay, whenever we are intaking the iron substances, then directly enter into the animal product is converted into heme directly absorbed in the duodenum. The plant product is ferric form that converted into ferrous form by the ferroreducted enzymes. Okay, in the duodenum the divalent metal transporter import the ferrous form of iron into the duodenum. Okay, then the storage form of iron bind with the apoprotein and the functional form of iron enter into the blood circulation. In the blood circulation, the liver releases the protein substances called as transferritin. Then this transferritin binds with the iron molecules, that is called as saturated transferritin. Okay, the transferritin which is not bind with the iron, that is a unsaturated transferritin. This is called as total iron binding capacity. Okay, TIBC करके करते हैं, total iron binding capacity means the transferritin, it is a capacity of the transferritin molecules to bind with the iron molecules. Okay, next in the blood circulation, then after it is enter into the transferritin. Okay, transferritin export the iron into the bone marrow. Then in the bone marrow of the cell, mitochondria, especially for the erythroblast cells. Okay, then mitochondria consisting of two types of enzymes. Okay, succinyl coenzyme and glycine. This combination of these two enzymes that forms the aminolevulinic acid. The two aminolevulinic acid combination that forms the pyrrole ring. The 4-pyrrole ring that forms the protoporphyrin ring. Okay, in the center of the protoporphyrin ring, the heme is transported. The heme is accumulated in the center of the protoporphyrin ring. Okay, then mRNA releases the globulin protein substances. Then heme is combined with the globulin substances. Then forms the hemoglobin. This hemoglobin is present in the erythroblast cells. This erythroblast is cellular division, morphological cellular division occurs. Erythroblast, then reticulocyte, then erythrocytes. These are the mature red blood cells. Okay, then mature red blood cells consisting of hemoglobin. Hemoglobin is essential for oxygen transportation. Hemoglobin is essential for nutrient transportation. Hemoglobin is essential for giving red color to the blood. So that's why this hemoglobin is very important. This is how the iron is entered into the hemoglobin and how the iron is play an important role in formation of hemoglobin. This is the whole the mechanism. Okay. That is the normal mechanism of how the iron is available to the body, how the iron is lost in our body, how the iron is intake through in our body, what are the food substances that influences the adequate absorption, what are the food substances that inhibit the adequate absorption, and how the iron is essential for formation of hemoglobin. This is the whole mechanism. Okay, then after formation of RBC, after 120 days the red blood cells are the lifespan of RBC is 120 days. 120 दिन के बाद RBC डेथ होता है. So क्यों? Because of these get older, old होता है. RBC old होता है. ये नया RBC बनाते नहीं है, मतलब खुद मल्टीप्लिकेशन होता नहीं है. क्यों? क्योंकि RBC क्या है? RBC इज ए नॉन न्यूक्लिएटेड सेल. RBC का अंदर न्यूक्लियस होता नहीं है. जहाँ न्यूक्लियस नहीं होता वहाँ DNA नहीं होता, RNA नहीं होता. नया सेल बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? Every new cells that requires the DNA and RNA. So in RBC, the mature RBC, there is no DNA, no RNA, there is no nucleus. That's why after 120 days, these red blood cells are destroyed. How they are destroyed? After 120 days, these red blood cells are enter into the spleen. Spleen में चले जाते हैं, क्योंकि in the spleen, in the capillaries, spleen के capillaries में struck होता है. Struck होने के बाद क्या होता है? The spleen macrophages are attack on red blood cells, then that destroy the red blood cells. Okay, spleen का macrophages वो RBC को ऊपर act करता है, वो RBC को destroy करने चालू करता है. So this is what the mechanism, how the mechanism occurs. Hemolysis, that process is called as hemolysis, means breakdown of blood cells or red blood cells. Okay, how RBC में क्या होता है? The RBC contains of consisting of mainly hemoglobin. RBC में hemoglobin होता है, protein होता है. RBC consisting non-nucleated, there is a protein covering the red blood cells. Okay,
हीमोग्लोबिन होता है, अंदर हीमोग्लोबिन होता है। द रेड ब्लड सेल कंसिस्टिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, प्रोटीन एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होता है, ओके, ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ओके। नेक्स्ट दिस प्रोटीन एंड सेल मेम्ब्रेन, दीज आर दी अमीनो एसिड्स, मतलब प्रोटीन सब्सटेंसेस है, फैटी एसिड्स है, दीज आर यूजफुल फॉर द न्यू सेल फॉर्मेशन, ओके। प्रोटीन सब्सटेंसेस है, फैटी एसिड्स, दीज आर एसेंशियल फॉर एसेंशियल इन द बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स को एसेंशियल होता है, वही यूज करते हैं। नेक्स्ट रेड ब्लड सेल कंटेन्स हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में दो पार्ट्स होता है, हीमोग्लोबिन में हीम एंड ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में बोला था मैंने कि हीमोग्लोबिन कंसिस्टिंग ऑफ दो पार्ट्स, हीम एंड ग्लोबिन। दिस हीम इज फॉर्म्ड बाय द आयरन सब्सटेंसेस एंड प्रोटोफोर फायरिंग रिंग, ओके। मैं बोला था 4 molecules ऑफ फायरोल रिंग दैट फॉर्म द प्रोटोफोर, ओके। इधर सेंटर में आयरन होता है, ओके। प्रोटोफोर फायरिंग रिंग, आयरन दोनों मिलके हीम बनाता है, ओके। हीम कंसिस्टिंग ऑफ आयरन एंड प्रोटोफायरिन रिंग, ओके, प्रोटोफोर फायरिन रिंग, ओके। देन दिस आयरन, ये आयरन क्या होता है? आयरन इज आल्सो वन ऑफ द प्रोटीन सब्सटेंसेस, ओके। दिस इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन। आयरन अपोप्रोटीन के साथ मिक्स होता है। अपोप्रोटीन में बोला, अपोप्रोटीन कहाँ होता है? डुओडेनम में, ओके। स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन के साथ बाइंड होकर स्टोर करता है। दिस आयरन इज बाइंड विथ द, okay, apoprotein that forms the ferritin, stored in our body as a ferritin. Then it is a protophore firing ring. It is converted into biliverdin. Biliverdin is again converted into bilirubin. Then it is excreted through the urine, stool, okay. urine stool के साथ excrete होता है. This is the how the hemolysis process occur. Red blood cells hemolysis मतलब 120 days के बाद इस तरीके से डेथ होता है, 120 days, okay. इस तरह से आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग दी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, causes, pathophysiology and clinical manifestation, diagnostic evaluation, management, we will see in next class. So before studying the iron deficiency anemia, the normal mechanism of iron absorption, iron metabolism, positive influenza, negative influenza, how the iron is losses in our body. So this mechanism is very essential. So study well. Thank you very much.